In today's virtual assembly, Shalom will be presented by Ms. Manju, Hindi speech will be delivered by Ms. Usha, Gayatri Mantra will be recited by Ms. Asha, news will be presented by Ms. Chanchal, and thought of the day will be presented by Ms. Chandra, and you will have a GK quiz with Mr. Harish. Good morning students, welcome to virtual assembly. Join your hands and close your eyes. Prayer start. ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां ऋषियों ने समझी है गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी ऋषियों ने समझी है गुनियों ने जानी वेदों की भाषा पुराणों की वाणी हम भी तो समझे हम भी तो जाने विद्या को हमको भी वरदान दे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां हे शारदे मां Students, the way you start the morning can affect your whole day. Moreover, if you learn how to start your morning right, you can reduce your stress and anxiety and significantly increase your chances of having a satisfying and productive day. Today's thought: always try to represent yourself happy, because initially it becomes your look, gradually it becomes your habit, and finally it becomes your personality. By Swami Vivekananda. Thank you and have a nice day. बच्चों, मैं आपके सामने संस्कृत का श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। काक चेष्टा वको ध्यान श्वान निद्रा तथैव च अल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणा। अर्थात एक विद्यार्थी को कौवे की तरह जानने की चेष्टा करते रहना चाहिए, बगुले की तरह मन लगाना चाहिए, कुत्ते की तरह सोना चाहिए, काम से काम और आवश्यकता अनुसार खाना चाहिए और गृह त्यागी होना चाहिए। यही 5 लक्षण विद्यार्थी के होते हैं। धन्यवाद। If I ask you which is the biggest animal in the jungle, you will say elephant. Which is the fastest animal in the jungle, you will say cheetah. And the tallest, giraffe. Wisest, fox. Where is the lion? He is the king of the jungle. Without these qualities, being tallest, biggest, etc., etc. But he is a courageous one, bold one, has strong willpower. There is no limit. You can be anybody. You can have any quality. The main thing is you should have believe in yourself. You should trust yourself that you can do it, and the day will come, then one day you will achieve it.
A very fruitful morning to all. I am here for the latest news headlines. Russian University successfully completes trials of world's first COVID-19 vaccine. That's a good news for all. CBSE declared class 12 results. Pass percentage more than 5.38% compared to 2019. Congratulations to all. Rajasthan political crisis. Doors open for Sachin Pilot, says Congress. Legislature meeting begins in Jaipur. Terrorists killed in encounter with security forces in Jammu and Kashmir's Anantnag. A record spike of 28,701 COVID-19 cases takes India's tally to 8,78,254. But children, do not panic. Stay safe, stay home. Do some yoga and exercises every day to keep yourself fit and active throughout the day. Thank you and have a nice day. गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल मैम, गुड मॉर्निंग ऑल टीचर्स एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जीके क्विज लेके आए हैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस। ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ पे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? सो इट्स आंसर इज नाइल रिवर। कौन सी रिवर है? नाइल रिवर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच इज द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। जो सबसे फास्टेस्ट एनिमल है, यानी जो तेज दौड़ता है, उसका नाम क्या है? चीता। क्या है इसका नाम? चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द इन्वेंटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन किसने की थी? इलेक्ट्रिसिटी की इन्वेंशन की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट। रेड प्लेनेट हम किसे बोलते हैं? इसका जवाब शायद सब लोगों को पता होगा, मार्स। मार्स को हम क्या बोलते हैं? रेड प्लेनेट। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ये सारे छोटे बच्चे भी जानते हैं इसका आंसर, कि इंग्लिश अल्फाबेट टोटल 26 लेटर्स जो होते हैं हमारे पास, 26 अल्फाबेट्स की रिगार्डिंग अगर हम बात करें, उसके अंदर 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वोवल्स होते हैं। लेकिन आपसे उसने पूछा क्या है, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट। तो जवाब आएगा 21 कॉन्सोनेंट आर देयर इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज मैं सत्संगति के विषय में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। सत्संगति का अर्थ है अच्छे और सच्चे तथा उत्तम स्वभाव के लोगों के साथ उठना बैठना और उनसे मित्रता करना। मानव को समाज में जीवित रहने तथा महान बनने के लिए सत्संगति परम आवश्यक होती है। इस संबंध में एक दोहा है, कदली सी भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए वैसे ही फलहीन। इसका अर्थ है कि स्वाति नक्षत्र में की एक बूंद भिन्न भिन्न वस्तुओं की संगति में जाने पर, उनके संपर्क में जाने पर उन्हीं के अनुरूप परिवर्तित हो जाती है। यह बूंद जब केले के संपर्क में जाती है तो कपूर बन जाती है, सीप के संपर्क में जाती है तो मोती बन जाती है, परंतु जब सर्प के संपर्क में जाती है तो विष बन जाती है। कहने का भाव यह है कि संगति अपना प्रभाव अवश्य दिखाती है। एक सामान्य बच्चा यदि अच्छे आचरण वाले पढ़ने वाले बच्चों से दोस्ती करता है तो वह भी अधिक अच्छा आचरण करने लगता है और पढ़ने में रुचि लेने लगता है। और यदि कोई अच्छे संस्कारों में पला बढ़ा बच्चा बुरे और छोटे आचरण वाले बच्चों से दोस्ती करता है तो उस कुसंगति का प्रभाव उसके जीवन पर अवश्य पड़ने लगता है। उसका मन पढ़ाई से हटने लगता है, किसी भी अच्छे कार्य में उसका मन नहीं लगता है, वह विवेकहीन होने लगता है और उसके जीवन का पतन शुरू हो जाता है। जिस प्रकार पारस के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, उसी प्रकार सत्संगति के प्रभाव से मनुष्य कहीं से कहीं पहुंच जाता है और सफलता के उच्च आसन पर आसीन हो जाता है। एक व्यक्ति के बारे में इस बात से भली भांति अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह कैसे लोगों के साथ रहता है।
यदि वह दुर्जन लोगों के साथ रहता है तो उसकी प्रवृत्ति भी दुर्जन होती है, और यदि वह सज्जन लोगों के साथ रहता है तो उसकी प्रवृत्ति भी सज्जन होती है। दुर्जन का संग करने पर व्यक्ति पग पग पर अपमानित होता है, उसे अपने मान की हानि उठानी पड़ती है, समाज द्वारा दंडित होना पड़ता है। दुर्जन का संग करने पर व्यक्ति अपनी उन्नति का गड्ढा